Hello friends, my name is Sir. Today I am going to teach you the topic nutrition of life process of 10th standard. So please listen to me and focus here and look at the board also. My dear friends, life process, the topic is nutrition. Nutrition. First of all, what is nutrition? Actually friends, nutrition का मतलब होता है consuming food and utilizing that food. Consuming food and utilizing that food is called nutrition. But it's only definition. It's a very long process. During nutrition, there takes place 4 steps. The first step is consuming food. Food को consume करना, food को खाना. It's a very simple one. Consuming food. Second one, digestion of food. जब food consume करते हैं, and when food enters our body, then there is a system. In that system, digestion takes place. Food goes to digestive, and after digestion of food, then there is an absorption of food. Food जब digest हो जाता है inside our body, then it mixes. After digestion, the digested food combines with blood. This process is called absorption of food. And after the last one is assimilation of food. What does it mean? It means when digested food with the help of blood goes into the cell, inside the cell, in cytoplasm, in protoplasm, then this process is called assimilation of food. So इस प्रकार during nutrition, when we consume food, after consuming the food, it goes digestion. After digestion, then it mixes with blood, and with the help of blood, it goes into the cells. So this is the whole process is called nutrition. So my dear friends, first is consuming food. On the basis of consuming food, nutrition is of 2 types. First one is autotrophic nutrition, and second one is heterotrophic nutrition. On the basis of consuming food, कि जितने भी organisms हैं वो food को consume कैसे करते हैं. तो my dear friends, पहला है autotrophic nutrition. In this type of nutrition, food is not consumed, but food is prepared inside the body. This occurs only in green plants, except some other examples, 1, 2 exceptional. So autotrophic nutrition takes place mainly in green plants. In green plants, there is a process takes place, that is photosynthesis, and during this process, plants prepare their own food with the help of CO2 gas and H2. As you know very well about the process of photosynthesis. तो green plants में autotrophic nutrition होता है. In autotrophic nutrition, the organisms prepare their own food themselves inside their body. Second one is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition में जो organisms होते हैं वो दूसरे organisms से food को get करते हैं. They take food from the other organisms. They eat them. They consume them. Heterotrophic nutrition takes place in most of the animals. Heterotrophic nutrition is also of 3 types: saprophytic, parasitic, holozoic. Saprophytic जो nutrition होता है उसमें वो animals आते हैं वो जो dead decaying plants and animals को consume करते हैं. Dead decaying plants और animals को consume करते हैं वो saprophytic nutrition में आते हैं. For example, fungi. Fungi is non-green. It cannot prepare its own food. It is heterotrophic. और heterotrophic में भी ये saprophytic है because it consumes dead decaying plants and animals. After that, parasitic. Parasitic में वो animals आते हैं which lives in the body of other animals and consume food inside from their body. The meaning is that ये दूसरे animals की body में रहते हैं और उन्हीं से अपना food consume करते हैं. जो दूसरा animal जिसकी body में ये रहते हैं parasitic animals, उनको host बोलते हैं. So they live in the body of host and consume food from them, and they are harmful for them. For example, tapeworm. Tapeworm is a parasitic animal, parasite in our intestine, in our body. Holozoic. Holozoic वो न्यूट्रिशन होता है my dear friends जिसमें हम सॉलिड फूड को कंज्यूम करते हैं.
सॉलिड फूड को बहुत सारे एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म. फॉर एग्जांपल मैन, डॉग, डियर, etc. So many, most of the animals they do this type of nutrition. So once again I am repeating, nutrition, types of nutrition: autotrophic and heterotrophic. Autotrophic nutrition takes place in plants only, and heterotrophic nutrition takes place in most of the animals. It is of three types: saprophytic, parasitic and holotrophic. Now my dear friends, I am coming to this side. If you look at here, my dear friends, now consuming food, I have explained you. I am going to teach you the second step, digestion of food. What is the meaning of digestion? जब फूड कंज्यूम हो गया, कंज्यूम होने के बाद उसका डाइजेशन होता है. द फूड गोज डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन? एक्चुअली हम जो फूड लेते हैं उस फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट द थ्री आर मेन: carbohydrates, proteins and fats. Carbohydrates, proteins and fats. These three nutrients are present in our body. They are very useful for our body. But when we take food, we take carbohydrates, we take proteins, we take fats. But ये अंदर हमारे बॉडी के अंदर जाकर के ब्लड में मिक्स नहीं होते, ये सोलुबल नहीं है ब्लड में. तो पहले इन तीनों न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में सोलुबल करने के लिए इनको कन्वर्ट करना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सोलुबल फॉर्म इनटू द ब्लड. तो माय डियर फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है. कार्बोहाइड्रेट शुड बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. प्रोटीन्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स एंड फैट्स should be converted into fatty acids or glycerol. Carbohydrates, protein, fats, they are complex nutrients. अब इनको कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, which is simple one, और ब्लड में मिक्स हो जाता है. प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना तो ब्लड में मिक्स हो जाता है. एंड फैट्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, they mix in blood. The meaning is that जो हम फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स होते हैं. उन तीनों को by the process of digestion they are converted into glucose, amino acids and fatty acid plus glycerol, and these are soluble in blood. So this process is called digestion, changing insoluble food into soluble food. That is called digestion. Digestion के लिए look at here my dear friends, digestion of food. डाइजेशन को फूड के लिए हमारी बॉडी में एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है. उस डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन टू चीजें होती हैं: एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. टू एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनल, इफ यू लुक एट हियर, स्टार्ट फ्रॉम माउथ. दिस इज एलिमेंट्री कैनल माय डियर फ्रेंड्स. दिस इज एलिमेंट्री कैनल. It starts from mouth and ends at anus. So this is alimentary canal. एक बार फूड अगर यहाँ आएगा, this is the track, this is the route, path of food. Food will go from this way, like this and like this and like this, and into anus. So this is called alimentary canal. Start from mouth and at anus, and it is around 10 meters long. And after that, digestive glands. There are two digestive glands in our digestive system: liver, pancreas. Liver and pancreas. My dear friends, liver is a digestive gland, pancreas is a digestive glands. They help in digestion. They have an important role in digestion. Now listen to me. First of all, alimentary canal. We will start with this alimentary canal, which is around 10 meters long. First of all, mouth cavity. My dear friends, when we consume food, when we take food, फूड थोड़ी देर के लिए माउथ में रहता है, माउथ कैविटी में रहता है. माउथ कैविटी में टीथ है, माउथ कैविटी में टंग है. तो टीथ उस फूड को छोटे छोटे बाइट्स में कट करता है. उसके बाद टंग उस फूड को सलाइवा में मिक्स करता है. सलाइवा, हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड्स होती है.
उस सलाइवरी ग्लैंड्स में से सलाइवा सिक्रीट होता है, और जो टंग होती है उस फूड को सलाइवरी ग्लैंड से निकले हुए उस सलाइवा में मिक्स कर देती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सलाइवा वो फूड से मिक्स हो चुका है इन माउथ कैविटी। उस सलाइवा में एक एंजाइम होता है। आपको समझना है कि डाइजेशन में एंजाइम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फूड को डाइजेस्ट एंजाइम्स करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में एंजाइम्स कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में एंजाइम्स कन्वर्ट करते हैं, और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में एंजाइम्स कन्वर्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम्स, तो पहला एंजाइम हमारे सलाइवा में, इट मींस डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ कैविटी। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम माउथ कैविटी, क्योंकि जो सलाइवा है उसमें एक एंजाइम होता है, उसका नेम है सलाइवरी एमाइलेज। द नेम ऑफ एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन, इसको आप टाइलिन भी कह सकते हैं, और सलाइवरी एमाइलेज। अब ये सलाइवा में है, इसका फंक्शन क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत सारी फॉर्म होती है। हमारे फूड में स्टार्च है, स्टार्च वो कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, और स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है दिस एंजाइम टाइलिन। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है एंजाइम टाइलिन माउथ कैविटी। आगे चल के उस शुगर भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, बट डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम माउथ कैविटी, बिकॉज माउथ कैविटी द सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन, और ये टाइलिन जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म स्टार्च को डाइजेस्ट करता है इनटू शुगर। नाउ कम टू नेक्स्ट, ये माउथ कैविटी में जो होना था आपको बता। माउथ कैविटी के बाद यहाँ पर एक छोटी सी पाइप आपको नजर आ रही होगी। द नेम ऑफ दिस पाइप इज फूड पाइप। यहाँ फूड पाइप भी होती है और विंड पाइप भी होती है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द फूड पाइप और ओएसोफेगस। ओएसोफेगस और फूड पाइप। फूड यहाँ पर बिल्कुल भी रुकता नहीं है, जैसे ही माउथ से फूड नीचे गया फूड पाइप से होता हुआ डायरेक्ट स्टमक में आता है। दिस इज स्टमक, एंड स्टमक में माय डियर स्टूडेंट्स 3-4 आवर्स फूड रहता है। 3-4 आवर्स स्टमक में फूड रहता है, और यहाँ पे मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हुआ था, और स्टमक में मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। इफ यू लुक एट माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्टमक है, ये स्टमक की वॉल्स है। 3-4 आवर्स फूड यहाँ पे रहेगा। स्टमक की वॉल्स में ग्लैंड्स होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द वॉल्स ऑफ स्टमक। इस स्टमक की वॉल्स में होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। आपको बताना चाहता हूँ, ग्लैंड जितनी भी होती है उनमें से कोई ना कोई सिक्रीशन निकलता है ग्लैंड्स में से। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनमें से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, और वो गैस्ट्रिक जूस यहाँ पर फूड से मिक्स हो जाता है। उस गैस्ट्रिक जूस में 3 मेन चीजें होती हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड नहीं तेजाब, पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम, म्यूकस, और म्यूकस एक सब्सटेंस होता है। ये 3 चीजें होती हैं गैस्ट्रिक जूस में। यानी इस स्टमक में फूड में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, उस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती हैं जो फूड से मिक्स हो जाती हैं। एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम एंड म्यूकस। व्हाट इज द रोल ऑफ दीज थिंग्स? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, जैसे फूड से मिक्स होता है सारा फूड का जो मीडियम एसिडिक हो जाता है। अब फूड का मीडियम एसिडिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब फूड में एसिड मिलेगा उसका मीडियम एसिडिक होगा, तभी जाकर एंजाइम पेप्सिन वर्क करेगा, अदरवाइज पेप्साइन एंजाइम वर्क नहीं करता। पेप्सिन एंजाइम वर्क व्हेन फूड इज एसिडिक इन मीडियम। जब फूड का मीडियम एसिडिक होता है तब पेप्सिन एंजाइम वर्क करता है। इट मींस पहले HCl मिक्स होगा फिर पेप्सिन वर्क करेगा। HCl एक और वर्क भी करता है, फूड का मीडियम तो एसिडिक बनाता ही है, ये फूड में प्रेजेंट कुछ जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, बैक्टीरिया या हार्मफुल सब्सटेंस, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम है, फूड का डाइजेशन करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेप्सिन एंजाइम है फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है।
बड़े कंप्लीट प्रोटीन को कन्वर्ट नहीं कर पाता, ये कुछ थोड़ी सी प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। बाकी जो प्रोटीन रह जाती है डाइजेस्ट होनी उस अगले स्टेप में, अगले ऑर्गन में हो जाती है। तो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। और अब थर्ड है म्यूकस। म्यूकस एक सब्सटेंस है, ये जब आपको पता ही है कि बताया था मैंने कि स्टमक की वॉल से निकलता है HCl। HCl मीन्स एसिड, एसिड है, एसिड बर्न्स, जिसके टच में आकर उसको बर्न करता है। तो जब एसिड निकलता है तो एसिड जो स्टमक की वॉल्स को डिस्ट्रॉय ना कर दे, एक म्यूकस सब्सटेंस में निकलता है। म्यूकस उस वॉल्स पे जमा हो जाता है स्टमक की वॉल्स पे, जिससे एसिड का उस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर म्यूकस नहीं निकलेगा तो एसिड जो है स्टमक की वॉल्स को थोड़ा डिस्ट्रॉय करता रहेगा और वहां पर अल्सर होने का खतरा रहता है। इसलिए म्यूकस जो है एसिड से स्टमक की वॉल्स को बचाता है। अंडरस्टूड? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3-4 आवर्स रहने के बाद फूड का काफी डाइजेशन हो रहा है। माउथ कैविटी में डाइजेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट्स का, स्टमक में हुआ प्रोटीन का। अब फूड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। लुक एट दिस, दिस इज माय डियर फ्रेंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग। हियर इट इज अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग। पूरी एलिमेंट्री कैनल 10 मीटर की है और स्मॉल इंटेस्टाइन सिंगल 6.5 मीटर लॉन्ग। ये इस तरह बंडल के रूप में होती है हमारी बॉडी के इनसाइड। इफ यू लुक एट हियर, अगर इस स्मॉल इंटेस्टाइन को आप देखें तो जो 2 ग्लैंड्स मैंने आपको बताई थी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये भी इसी से कनेक्टेड है। लीवर कनेक्टेड विद पैंक्रियास और यहीं से कनेक्टेड है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू लुक एट हियर, लिसन टू मी नाउ। जो लीवर है, लीवर में बनता है बाइल जूस। बाइल जूस produces in liver, produced by liver, and liver के प्रोड्यूस होने के बाद ये है गॉल ब्लैडर। ये लीवर के अंदर ही आपको गॉल ब्लैडर नजर आ रहा होगा। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से इस ट्यूब के थ्रू बाइल जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। बाइल जूस कम्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन और फूड से मिक्स हो जाता है। सेकंड पैंक्रियास। पैंक्रियास एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। पैंक्रियास से भी पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। ये भी ग्लैंड है और ग्लैंड में से कोई ना कोई सिक्रीशन निकलेगा। पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, वो जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो लीवर से बाइल जूस, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइन जो होता है उसकी जो ग्लैंड्स होती हैं उसमें से भी एक इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। इट मींस जब फूड स्टमक से होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उसमें 3 सिक्रीशन मिक्स होती है। बाइल जूस फ्रॉम लीवर, पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियास एंड इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अब इनमें क्या क्या होता है, लिसन टू मी। जो बाइल जूस लीवर से इसमें आया, बाइल जूस में कोई एंजाइम्स नहीं होता, नो एंजाइम्स इन बाइल जूस। बाइल जूस का फंक्शन क्या है? एक तो हार्मफुल जो बैक्टीरिया वगैरह उसमें फूड में होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना। सेकंड, फूड का मीडियम जो एसिडिक था, स्टमक में जो एसिड मिल गया था उसको कन्वर्ट करना बेसिक में, क्योंकि बाइल जूस बेसिक होता है और फूड से मिलकर फूड के मीडियम को बेसिक कर देता है। अब इस बेसिक मीडियम के फूड में बाकी एंजाइम्स वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैंक्रियास, पैंक्रियास से निकला आपका पैंक्रियाटिक जूस। उस पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं 3, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। 3 एंजाइम्स इन पैंक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है एमिनो एसिड्स में, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज फैट्स को डाइजेस्ट करता है। फैट को डाइजेस्ट करने वाला ओनली सिंगल एंजाइम है, दैट इज लाइपेज। फैट का डाइजेशन अब शुरू हुआ है, इट्स स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर भी फूड डाइजेस्ट हो रहा है,
पैंक्रियाज से निकलने वाले पैंक्रियाटिक जूस में जो 3 एंजाइम्स निकले उन्होंने फूड को डाइजेस्ट करा, माउथ कैविटी में फूड डाइजेस्ट हुआ, स्टमक में फूड डाइजेस्ट हुआ और अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट की प्रोसेस चल रही है। अब है इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलने वाला इंटेस्टाइनल जूस, उसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं माय फ्रेंड्स। तो इंटेस्टाइनल जूस में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो सारे एंजाइम्स फूड को अच्छी तरह डाइजेस्ट कर लेते हैं। द मीनिंग इज दैट इस स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट में जब फूड पहुंचता है तो उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। द मीनिंग इज दैट कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम्स के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है और फैटी एसिड्स और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इस प्रकार इन दिस वे डाइजेशन की प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। बट अगर कोई अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है तो डाइजेस्ट होना वो नहीं पाता, थोड़ी बहुत अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स या फैट्स की डाइजेस्ट नहीं हो पाती, कन्वर्ट नहीं हो पाती, वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए उसको हम धीरे धीरे करके इस एनएस से बाहर थ्रो आउट कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, today I told you nutrition, the basic thing on nutrition. I hope you understood it. Please look at this video again and again, then you will understand very easily. Thank you very much. Bye bye.